everyone. Today's topic this is teaching and learning abilities. I am going to start these things by the words given by the Phil Collins. This is, in learning you will teach and in teaching you will learn. Means जब आप सीखते हैं तो आपको खुद को टीच करते हैं और जब आप टीच करते हैं, जब आप दूसरे को टीच करते हैं तो वहां पे आप खुद सीखते हैं। In teaching and learning in teaching and learning process, we are going to discuss about the different methods of the teaching and the learning also. As for the teaching, we know that very well teaching is the process in which a more intelligent person, a more talented guys teach the less intelligent person, less intelligent guys. The next slide, please. Next. We know that very well here the old ways of learning. The old ways of learning and teaching is found to be too rigid and too automated. But now teaching learning process consists of four basic elements. This is assessment, planning, implementation and evaluations. If we know that very well, in earlier time जो हमें हमारे पढ़ाने का तरीका था वो बिल्कुल रिजिड टाइप का था. It means that we are just using the chalk and duster and different types of objects. Activities performance were complete. But nowadays we are using the different types of digital content to teach the students. Like for example, in today's we using projector, we using smart classes, we using different activities, presentations to teach the students in a good manner. Next slide. Definition related to the teaching learning process is teaching learning process, learning, teaching, domination and curriculum. What is teaching? Teaching is the process of including moral values, abilities, a skills by the experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change behavior useful in developing oneself and the society. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर एक एक्सपीरियंस पर्सन इनएक्सपीरियंस पर्सन को टीच करता है ताकि उसके मोरल वैल्यूज, उसके एबिलिटीज, उसके बिहेवियर में चेंजिंग लाया जा सके. टीचिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल्स. Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learners in the classroom situations. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से आप एक इंडिविजुअल पर्सन को टीच करते हैं और उनके बिहेवियर, उनके एक्टिविटी, उनके लाइफ में चेंजेस लाते हैं ताकि वो एक सक्सेसफुल पर्सन फ्यूचर में बन सके. नेक्स्ट. डेफिनेशन ऑफ टीचिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स like A.C. Moore. Teaching is an engineering contact between one mature personality and a less mature personality. Teaching एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक more mature personality के साथ एक less mature personality का रिलेशन होता है. It means we teach those guys जो कि एक less mature personalities होता है उन्हें उन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता है. Teach them. तो अगर हम more mature होंगे, we have more experience, we get too much knowledge from anywhere, then we वहाँ पे हम लोग उन सारे knowledge को क्या करते हैं in front of them explain करते हैं ताकि उनका future और उनका behavior में change जा सके, gesture, posture इन सभी चीजों में change जा सके. Next, by parent, he simply defines teaching is the process facilitating learning. Teaching एक process है बच्चों को इंटीमेट करने का या लेस मैच्योर पर्संस को इंटीमेट करने का, उन्हें बढ़ाने का, उनके बिहेवियर में चेंजेस करने का, ये फैलेंट के द्वारा बताया गया. The next one is blue culture. Teaching is the arrangement and the manipulation of a situation
and which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so. According to the group sir, उन्होंने ये बताया कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आपको यानी मोर मैच्योर पर्सन जब लेस मैच्योर पर्सन को टीच करता है तो उनमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन का कारण होता है। अगर उनमें ये सारी चीजें जो टीच कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उनमें वो सारी चीजें नहीं होती तो उस कंडीशन में वो बच्चों में वो चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अ गुड टीचर हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनके बिहेवियर, उनके पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीजें उनमें अगर सही होगी तभी वो बच्चों को सही तरीके से बता पाएंगे। What is learning? Learning is about to change in behavior. As per I discussed before, कि टीचिंग जब किया जाता है, जब टीचर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, एक गुड लर्नर का ये काम होता है कि he must listen the teachers. वो टीचर्स को लिसन करें और उनकी बातों को सुनने के बाद ही उनके बिहेवियर में चेंज आता है, उनमें साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट है द चेंज दस अराइव इज नॉट merely incidental or natural. ये चेंज ना तो इंसिडेंटल होता है और ना ही नेचुरल होता है। ये चेंज जो होता है एक एक्सपीरियंस से होता है और प्रैक्टिसिंग से होता है। यानी जितना आप मोर एक्सपीरियंस होंगे, जितना आप मोर प्रैक्टिस करेंगे, यू बिकम अ गुड टीचर, यू बिकम अ गुड लिसनर, यू बिकम अ गुड स्टूडेंट एंड यू मे बी become successful in your life if you are more experienced and you do the more practicing. The next one thing is learning is relatively permanent change. Learning एक permanent change है, वहीं usually brought about intentionally. Learning एक permanent change होता है। It means कहने का मतलब है कि whatever we teaching in the classroom, जो भी चीज हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर बच्चों का कंसंट्रेशन उस टॉपिक के साथ नहीं है और वो थोड़ी देर के बाद उन चीजों को भूल जाते हैं तो उस टीचिंग का फिर कोई मतलब हमारा नहीं रह गया और ना ही लर्नर का कोई उसके लिए मतलब रह गया कि आज पढ़ाया 2 दिन के बाद को बच्चा भूल गया। इसलिए टीचिंग को परमानेंट होना चाहिए, सॉरी लर्निंग इज रिलेटेड परमानेंट चेंज होना चाहिए, यानी परमानेंटली चेंज जो आज वो पढ़े वो इन फ्यूचर में उसको यूज कर पाए, ना कि वो 2 दिन के बाद भूला है, वैसा नहीं होना चाहिए। The main aim of education is to produce desirable change in human behavior. Learning का मतलब ये होता है उसके बिहेवियर में कंप्लीटली चेंज आना। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जूनियर बच्चों को जो टीचर टीच करते हैं, उन बच्चों में आने के बाद उनके घर से यहाँ पे उनका बिहेवियर काफी बदल जाता है। लाइक उनके बात करने का तरीका बदल जाता है, उनका पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं, ये सारी चीजें उनमें आ जाती हैं। तो बिहेवियर चेंज होता है, उनकी पर्सनालिटी में बदलाव आती हैं, स्किल्स डेवलप होता है, जो कि ये सारे काम लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल है। ऐसा Next topic is teaching learning process. As we discussed before, it is the most powerful instrument of the education to bring about desirable change in the student. Teaching learning process एक powerful instrument है education system का, जिसके थ्रू हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम टीचर्स बच्चों का फ्यूचर यानी पिलर खड़ा करते हैं। इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक desirable change है in the student. Curriculum refers to a course of study at a school, university and the subject making of a course. Curriculum यानी ये एक ऐसा प्रोसेस ऑफ स्टडी होता है जो कि डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट एजुकेशन के तौर पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल we are giving them education, we are teaching the students from class 1 to class 10, then we just the students go to join the colleges, वहाँ पे वो ICOM करते हैं, ISC करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद PhD करते हैं। different types of options are there जिसके मदद से वो आगे बढ़ते हैं। next है domains, it is an area of control or a sphere of knowledge. domains का मतलब होता है कि the area from where we get the knowledge, there is no age boundary, कोई एज बाउंड्रीज नहीं होता है नॉलेज को गेट करने का। जहाँ से भी नॉलेज मिले वहाँ से भी हमें लेना चाहिए उस नॉलेज को, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट्स।
या चाहे वो लर्नर हो या लर्नर हो या फिर टीचर, जहां से भी नॉलेज मिले वहां से नॉलेज को हमें क्या करना चाहिए, गेट करना चाहिए। 7 principle of effective teaching learning process. The first one is encourage the students faculty contact. Second one is increase cooperation among the students. Encourage active learning, prompt feedback, emphasis time or task, communication high expectation, respects diverse talents and ways of learning. The first one is encourage the student faculty contact. यानी जब टीचर बच्चों को टीच कर रहे हैं तो उनके बीच में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारे बीच क्या होता है कि जब हम बच्चों को टीच करने जाते हैं, हमारा सिंपल होता है, हमारे पास अगर वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, वी आर नॉट एबल टू टीच द स्टूडेंट इन द क्लास में, बिकॉज क्योंकि वो एक गुड लिसनर बनी नहीं पाएंगे, वो हमारे सवाल को सुनेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे नहीं। तो अगर मान लीजिए कि बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, हम अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, तो हमारी बातों को सही से सुन पाए। और ये ओल्ड टाइप्स के टीचिंग मटेरियल का हम यूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल्स, आज भी अगर हम सिर्फ ऐसे ऑडिबल कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। वी मस्ट यूज द विजुअल कंटेंट देयर। लाइक फॉर एग्जांपल, वी मस्ट यूज द स्मार्ट क्लासेस देयर, ठीक है, वी मस्ट यूज द प्रेजेंटेशन, ताकि बच्चों की कनेक्टिविटी वहां पे हो पाए। लाइक फॉर एग्जांपल, इन अर्लियर टाइम अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ाई किया था तो एफ फॉर एप्पल बस ये बताया जाता था, बट नाउ इज द टीचिंग मेथड इज चेंज। ए फॉर एप्पल, दिस इज एप्पल, दिस इज द मेथड ऑफ द टीचिंग। अर्लियर टाइम में हमें टीच किया जाता था, हमें पढ़ाया जाता तो ये बताया जाता था कि एप्पल, ए फॉर एप्पल कुछ दिखाया नहीं जाता था, जिससे हमें उसको आइडेंटिफाई करने में ही काफी टाइम लग जाता था कि भाई एप्पल होता कैसा। बट नाउअडेज एफ फॉर एप्पल एंड दिस इज एप्पल, बच्चा वो देखेगा घर में भी तो कहेगा कि दिस इज एप्पल, वो ज्यादा तेजी से लर्न करेगा। विजुअल एक्टिविटी भी वहां पे चाहिए। नेक्स्ट है इंकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, इन द क्लासरूम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 50 60, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव सेम नॉलेज एंड सेम पावर टू लर्न। सभी स्टूडेंट्स के बीच में सेम पावर नहीं होता है लर्निंग का, और ना ही सेम तरीके से वो किसी चीज को सीख पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पुअर होते हैं। तो हमें कंटेंट को इस तरीके से यूज करना है कि सभी के लिए बेनिफिशियल हो, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सभी की बातों के साथ सभी की बातों को सुनें, समझेंगे और अपने पॉइंट को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से उसकी लगता है कि हाँ वहां से उसे हमें भेज देना चाहिए। ये नहीं कि हमारा आज का ये टॉपिक है, हमने स्टार्ट कर दिया और हमने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो हमें सबसे पहले क्लासरूम में इंटर करने के साथ ही ये देखना चाहिए उनका पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले प्रीवियस नॉलेज गेन करना चाहिए। उनको कहां तक नॉलेज है, लाइक 2+2 बच्चे 2+2 4 जान रहे हैं या नहीं, वो देखना होगा। अगर वो नहीं जान रहे तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, हम उसको सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा सकते, तो ये हमें ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिव लर्निंग, यानी एक्टिविटी लर्निंग। बच्चों को ज्यादातर एक्टिविटी लर्निंग सिखाना होगा। We must try to give the different types of activity knowledge to the students. That's why वो एक्टिविटी से बहुत कुछ सीख पाएंगे और वो डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और उस एक्टिविटी से बहुत सारे नॉलेज को गेट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि एप्पल आप पढ़ा रहे हैं फॉर एप्पल, दिस इज ओके। घर में गार्जियन कहते हैं कि मैंने बच्चों को पढ़ा दिया A to Z, ए फॉर एप्पल आता है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ए फॉर एप्पल होता है, तो वो एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, उन्हें से ड्राइंग करवाना, ये चीजें बहुत बेहतर। एप्पल कैसा होता है तो वो बनाना ऐसे सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट फीडबैक। जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाए, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि फीडबैक गेट करें। उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक गुड लर्नर लिसनर है या नहीं, क्या उन्होंने मेरी बातों को सुना या नहीं। 40 मिनट्स की क्लासेस में वी मस्ट हम लोगों को 10 मिनट सिक्योर करके रखना चाहिए कि हमें आस्किंग राउंड होना चाहिए कि हम क्वेश्चन आस्किंग राउंड करें, वो बच्चा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, इट मींस कि हमारी टीचिंग वहां पे फेलियर है। तो हमें वहां पे कोशिश करना चाहिए कि हमें उसके बेस से सोच करके उसके लाइफ डेफिनेशन उसको समझाना चाहिए, अपने तरीके से समझाना चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए, रियल वर्ड से समझाना चाहिए, अ लॉट ऑफ डेफिनेशन।
The next is emphasize time on task. समय का उचित यूज करना। बच्चों को ये बताना कि समय, we know that variable time is very precious. हर समय उनका एक एक सेकंड भी बहुत प्रीशियस होता है, तो वो अपने हर सेकंड हर मिनट को यूटिलाइज करें और अपने टास्क को कंप्लीट करें। जैसे कि भवानी मैम के अभी आपने जस्ट उनके प्रेजेंटेशन में अभी एक चीज आपने देखा था कॉमन, कि जब हमें दे दिया जाता था किसी भी मैम के थ्रू की प्रेजेंटेशन बनाना है या लेसन प्लान बनाना है, तो किन्हीं को 2 डेज लग रहा है, किन्हीं को 4 डेज लग रहा है, किन्हीं को 7 डेज लग रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। क्या हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू प्रिपेयर इट, ये हमें पता नहीं। तो ये हमारा टाइम का यूटिलाइज, हमारा तो टाइम का वेस्टेज हो गया। अगर वो चीज पहले ही बता दिया जाता कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो मैं भी सभी लोग 2 डेज में ही कंप्लीट कर लेते। तो इन द सेम वे कि जब बच्चों को आप पढ़ाएं तो उनके लिए ये भी मायने रखता है कि टाइम बहुत प्रीशियस है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की। द नेक्स्ट वन थिंग इज कम्युनिकेशन हाई एक्सपेक्टेशन। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। वी नो दैट वेरी वेल, इन आवर स्कूल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश को सही तरीके से समझ भी नहीं पाते। तो हमारे और चिल्ड्रन के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। दैट्स वाई जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, वो जो डल स्टूडेंट होते हैं, वो हमारी बातों को सही से समझ नहीं पाते। तो we use both the languages there. That's why the students are able to understand all the concept. जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में वो भी बेहतर समझ सकें, जो डल हैं पढ़ाई में वो भी बेहतर समझ सकें, यानी उनके वे से उनको पढ़ाना है। The next one thing is respect diverse talent and ways of learning. हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चों के टैलेंट का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। मे भी हो सकता है कि द स्टूडेंट्स हु इज वेरी वेल इन क्रिकेट, वो हो सकता है कि एजुकेशन में अच्छा ना हो, एवरेज, तो उनके इस टैलेंट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उन पे ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि एजुकेशन इज एवरीथिंग। वो एवरेज स्कोर भी हैं, दैट्स ओके। उनका टैलेंट अगर क्रिकेट में है तो उनको वहां पे बढ़ना चाहिए, तो उनको वहां पे हमें बढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि भाई आपकी इसमें है रुचि है तो आप आगे बढ़ो। लाइक हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक गर्ल्स का परफॉर्मेंस लास्ट टाइम हुआ था, दैट्स वाज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग था। तो वो अगर डांस में जाना चाहिए तो अगर एवरेज स्टूडेंट भी है, प्लेटफॉर्म क्रिएट है कि एवरेज स्टूडेंट है वो आगे बढ़ जाएगी और डांस परफॉर्मेंस उसको आगे ले जाएगा, वो उसका टैलेंट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल भी हैं। पहला, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। एज पर आई डिस्कस बिफोर, क्लासरूम में इंटर करने से पहले जब हम इंटर कर जाते हैं तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज यानी उसके बारे में ये जानना कि उसको उसमें कितनी गहराई तक नॉलेज है या नहीं। आफ्टर दैट अपने टॉपिक को कंटिन्यू। इंडिविजुअल डिफरेंस in a classroom, number of students are there. कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मोर एजुकेटेड होते हैं, वो हाईली किसी भी चीज़ को लर्न कर लेते हैं, और कुछ लेस होते हैं। तो हमें उनको देखते हुए, उनके डिफरेंस को देखते हुए हमें पढ़ाने का तरीका भी बदलना। जो गुड लिसनर, जो गुड लर्नर है, वो आपकी बातों को बहुत जल्दी कैच कर लेगा, लेकिन जो लेस लर्नर है, लेस लिसनर है, वो आपकी बातों को बहुत तेजी से लर्न नहीं करता, जिसकी वजह से वो आपका जो लेस लर्नर है वो आपका अच्छा परफॉर्मेंस क्लासरूम में या कहीं पे भी कर नहीं पाए। तो हमें ये देखना है कि हमें जो तेज है उसको तो पढ़ाना ही, हमें तो पढ़ाना है उसे जो लेस लर्नर है, जो पढ़ नहीं पाता है, हमें तो उसे पढ़ाना है। जो अच्छा है उसको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जो बुरा स्टडी में है उसको पढ़ाना है ताकि वो अच्छा कर पाए। लाइक जो अगर बहुत ज्यादा पुअर है स्टडी में, वो एवरेज बन जाए, जो एवरेज है वो और आगे बढ़ जाए, जो आगे है वो तो आगे नहीं। The next one thing is readiness and meaningfulness and planning. Before entering in the classroom, we must prepare a presentation. We must have a planning. We must have a planning. What you want to teach in the classroom? What do you want to teach in the classroom? क्या आप क्लासरूम में पढ़ाने चाहते हैं? This is called lesson plan.
हम लोग इसके लिए लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं. एंड हाउ टू टीच, लेसन प्लान मीन्स नॉट ओनली इन पेपर, हाउ टू टीच. आप उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, आप उसको स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, आप इसको सिर्फ बोलकर पढ़ाना चाहते हैं, ऑडिबल तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, ये चीजें उसमें होना चाहिए. द वे ऑफ टीचिंग. तो ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग करके जाते हैं ताकि हम अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें और बच्चे हमारी बातों को सही तरीके से सीख सकें. द नेक्स्ट वन थिंग इज सिलेक्शन. प्लानिंग के दौरान टॉपिक का सिलेक्शन ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. बट टॉपिक का सिलेक्शन हमारे स्टूडेंट के बेसिस पे होना चाहिए, यानी जो डिफरेंट स्टूडेंट है हमारे क्लास में उनके बेसिस पे टॉपिक का सिलेक्शन होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि हमें कोर्सेज कंप्लीट करने, दैट्स व्हाई वी टेक मोर टॉपिक, और हम गए और क्लास में हमने अपना टॉपिक पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म. नो, हमारा काम है वहां पे जो भी टॉपिक पढ़ाएं वो सारी टॉपिक उन बच्चों के दिमाग में जाना चाहिए. अदरवाइज वी ऑल आर फेलियर, हम फेलियर वहां पे पढ़ाने में. तो दैट्स व्हाई हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, विद प्रेजेंटेशन, विद स्लाइड्स, विद जस्ट कह सकते हैं स्मार्ट क्लासेस या फिर ऑडिबल कंटेंट, इन सारी चीजों के तरफ. द नेक्स्ट वन थिंग इज डिवीजन. डिवीजन इज सेम जस्ट लाइक अगर एक लेसन को पढ़ाना है तो वी मस्ट डिवाइड द डिफरेंट सेक्शन कि आज कौन सी टॉपिक डील करना है, कल कौन सी टॉपिक डील करना है, ये सारी चीजें डिवीजन होनी चाहिए. मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वीक में हमारे क्लासेस 4-5 पढ़ रहे हैं तो मे बी 1 मोटिवेशनल क्लासेस गिव टू द स्टूडेंट. उनमें बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि बच्चे आपके फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है और आपको क्या करना चाहिए. दैट्स व्हाई वो मोटिवेट हो सकें और आपके साइड में उनका कंसंट्रेशन बन सके, वो आपको आपकी बातों को सही तरीके से लिसन कर सके, सुन सके. नेक्स्ट है एक्टिविटी. ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्टिविटी परफॉर्मेंस. एक्टिविटी करवाना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि जूनियर सेक्शन में ज्यादातर देखने को मिलता है. एक्टिविटी परफॉर्मेंस. एक्टिविटी परफॉर्मेंस से बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हाउ टू क्रिएट दिस, हम उसे कैसे बनाएंगे. और साथ साथ जूनियर में अगर बच्चों को ये चीज दिया जाता है तो उनके गार्जियन भी ये चीज सीखते हैं, सिखाते सिखाते वो भी सीखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर दिस. और ये चीजें बच्चों के लिए बहुत बेहतर है, वो आगे चल करके अच्छे प्रेजेंटेशन या अच्छी एक्टिविटी को कर पाएगा. द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट, रुचि. आपको पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, जिसके लिए मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब तक कंटेंट के साथ बच्चा जुड़ नहीं पाएगा तब तक बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे. तो कंटेंट इतना पावरफुल होना चाहिए कि बच्चे हमारे कंटेंट के साथ जुड़ जाएं और उन्हें ये लगे कि क्लास सर छोड़कर नहीं जाए, वो कंटिन्यू करें. कंटेंट इतना पावरफुल होना चाहिए. क्रिएशन एंड रिक्रिएशन. एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट वन, maxims of teaching. Maxims of teaching have been discovered, not invented. They are simply the statement of the way in which teaching and learning go forward. टीचिंग और लर्निंग को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो मैक्सिम कहलाता है. लाइक फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारे पढ़ाने का तरीका. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल्स, आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू. लाइक क्लास 1 में भी हम लोग एडिशन सिखाते हैं, क्लास 2 में वो एडिशन थोड़ा टफ हो जाता है, क्लास 3 में सिंप्लीफिकेशन तक बढ़ जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो हमारा तरीका जो होना चाहिए वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए. वेदर हम लोग क्लास 10 के स्टूडेंट को टीच करें, 8 के स्टूडेंट को टीच करें, 9 के स्टूडेंट को टीच करें, नो मैटर, क्योंकि वहां हमें स्टूडेंट्स को देखना है. तो हमें जाना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल. पार्टिकुलर टू जनरल. द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी जो टॉपिक की जानकारी है वो और जो टॉपिक की जानकारी नहीं है वो, हमें उन दोनों चीजों को क्या करना है वहां पे डिस्कस करना है. जो बच्चे जान रहे हैं उन्हें भी वो चीजें समझानी है अपने तरीके से. जितना वो जान रहे हैं उससे ज्यादा, और जो नहीं जान रहे हैं वो तो उन्हें समझाना ही.
फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पूरे एक पार्ट को पूरे लेसन को पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। पूरे एक लेसन को पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम डेफिनेट टू इंडेफिनिट, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग को पढ़ाने के मेनली 3 फेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेज 1, जिसे हम कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। Stage 1 is pre-active stage. Fixing up goals and content. Decision about strategy. ये इसके अंतर्गत आता है। Stage 1 के तहत अगर देखा जाए तो pre-active stage होता है, यानी पहले से प्लानिंग किया गया। क्लासरूम में एंटर करने से पहले आपकी क्या प्लानिंग है, वो सारे कंटेंट आपके प्री स्टेज के अंतर्गत आएंगे। Stage 2 इंटरएक्टिव स्टेज, जिसके अंतर्गत हाउ टू टीच द स्टूडेंट। आप क्लासरूम में इंटर करने के बाद बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, जिसमें आपको पहला बताया गया था कि प्रीवियस नॉलेज, सबसे पहले उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, आफ्टर दैट आपको कंटेंट को आगे बढ़ाना है। तो वो आपके सेकंड स्टेज में आता है, जिसे हम इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं। पोस्ट एक्टिव स्टेज ये होता है बच्चों का फीडबैक। बच्चों का फीडबैक इट मींस जब भी आपकी क्लासेस लगती हैं तो 10 मिनट बिफोर आप अपने क्लासेस को स्टॉप करें, यानी आप अपने टीचिंग को जो कंटिन्यू करके रखें उसे स्टॉप करें और 10 मिनट्स में आप उनके फीडबैक को लें। वो आपके पोस्ट एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग के 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपरेशन, तो before teaching, before going to the classroom, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। चाहे तो प्रेजेंटेशन बनाइए, चाहे वो आप लेक्चर प्लान तैयार करिए, या जो भी कंटेंट के साथ आप देना चाहते हैं, बट कंटेंट ऐसा हो कि बच्चे का कनेक्शन आपके साथ बना रहे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। योर प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए। योर एक्सप्लेनेशन आपका बेहतर होना चाहिए बच्चों के सामने, जिससे कि क्या होगा, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल्स वी कैन से दैट कि we are going to give the definitions of the different topic by using the book, but उसका explanation हमारे खुद के साइड से भी होना चाहिए, हमारे own language में होना चाहिए। That's why the students are able to understand. And the most important way of teaching is give the real world example from anyone. Real world example उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आसपास की चीजें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। एप्लीकेशन और रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। एप्लीकेशन यू नो दैट वेरी वेल, उनके लिए हर तरीके का एप्लीकेशन तैयार किया जाना कि वो अगर लर्निंग करते हैं तो उनकी डिफरेंट एक्टिविटी, उनका क्वेश्चन आंसरिंग जो भी होगा बेस्ट वो टेक्निक। और रिव्यू एंड इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि व्हाटएवर द कंटेंट गिवन टू द स्टूडेंट, नेक्स्ट डे उनको इवैल्यूएट करना, चेक करना, ये उसके फीडबैक के अंतर्गत भी आ जाता है। फीडबैक लेना और कॉपी को इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट, definition of learning by different authors like Gates and others. Learning is the modification of behavior through experience. When a high experience, यानी when a experienced person teach the less experienced students, तो उस कंडीशन में the students behavior change, स्टूडेंट्स का बिहेवियर बदल जाता है, उनके सोचने का तरीका, थिंकिंग एबिलिटी बदल जाता है। ये थ्योरी दिया गया है गेट्स एंड अदर्स के द्वारा। हेनरी पी स्मिथ ने बताया कि लर्निंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। अपने पुराने तरीके, पुरानी चीजों को इम्प्लीमेंट करके नई तरीके से प्रेजेंट करना, अपने पुराने तरीकों को, पुराने बिहेवियर को बदल करके नई तरीके से अपने बिहेवियर को प्रेजेंट करना। दिस इज हेनरी पी स्मिथ, उन्होंने ये बताया लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट है ग्रो एंड प्रो। लर्निंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। It involves new ways of doing things and operates in an individual's attempt to overcome obstacles or adjust to new situations. Pro and pro. अर्लियर टाइम में अगर मैं देखा जाए तो ये लर्निंग का बेस्ट तरीका था, प्रो एंड
जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रखू तोता। Nowadays most of the students trying to follow these rules. वो इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। बिफोर एग्जामिनेशन वो बस रखते हैं और एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट डे दे आर फॉरगेट टू सॉल्व द कंटेंट। जो कि हमारा मोटो नहीं, क्योंकि लर्निंग को हमें परमानेंट बनाना है और वो परमानेंट वहां पे है नहीं, क्योंकि बच्चे उसको प्रो एंड प्रो मेथड से यूज करते हैं। तो हमें उस मेथड को हटाना है और बच्चों के दिमाग में कंटेंट को इस तरीके से डालना है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन को खुद से करें, प्रो एंड प्रो मेथड हट जाए। The next one is Astina के थ्रू। Learning is the process of progressive behavior adaptation। Learning एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं। यानी टीचर के थ्रू, टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो उनके बिहेवियर, उनके मोनिकुलर्स, उनके स्किल्स, उनके थिंकिंग एबिलिटीज, इन सभी को हम सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं खुद। द लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहला आता है क्वेश्चन यानी इनपुट। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है इनपुट करना। जैसे कि हमने दे दिया, इनपुट कर दिया, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आज तुम्हें हमने ये बता दिया कि 2 + 2 = 4, 5 + 7 = 1। दिस इज इनपुट। नाउ डिसाइडिंग मींस उसका ब्रेन प्रोसेस करे। सर ने बताया था कि 2 + 2 दिस इज 4, तो 5 + 2 क्या होगा, वो ब्रेन में जस्ट प्रोसेस करेगा और आफ्टर दैट वो एक्टिंग करेगा, वहां से आउटपुट आएगा। जैसे 2 + 5 या 5 + 2 = 7, तो फीडबैक आपको क्या मिल गया, 7। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। पहला आपने इनपुट किया, आपने सिखाया इस चीज को, इस मैथ्स का सॉल्यूशन हम इस तरीके से करते हैं, फिर उसके बेस पे आपने उसको एक इनपुट दे दिया, आपने उसको एक क्वेश्चन दे दिया। वो उस क्वेश्चन को गेट करता है, परस्यूइंग करते हैं। आफ्टर दैट उस क्वेश्चन को गेट करने के बाद वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उस क्वेश्चन को प्रोसेस करेगा अपने ब्रेन में कि हाउ टू सॉल्व इट। प्रोसेस करने के बाद यू विल गेट एन आउटपुट रिजल्ट। आफ्टर दैट यू विल गेट द फीडबैक। अगर वो राइट है देन ओके, अगर वो राइट नहीं है तो आप फिर से उसको क्या करेंगे, सिखाएंगे। और यही प्रोसेस का तरीका बार-बार क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। ये प्रोसेस जो है लर्निंग का, जो प्रोसेस का ये तरीका है, ये बार-बार क्लासरूम में रिपीट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, पार्टिसिपेशन, रिपीटेशन, रिलेवेंस, ट्रांसपेरेंस एंड फीडबैक। वी नो दैट वेरी वेल। पार्टिसिपेशन मींस कि लर्निंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि बच्चों का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन लेना किसी भी थिंग्स में, किसी भी एक्टिविटी। यानी बच्चों को ये होना चाहिए दिमाग में कि वी कैन डू, हम कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि वी कांट डू, हम नहीं कर सकते। अगर ये दिमाग में होगा वी कैन डू, हम कर सकते हैं, तो बच्चे एक्टिविटी में पार्ट करेंगे। अगर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो वो सोच करके भी उनमें अगर कुछ नॉलेज भी होगा तो वो अपनी एक्टिविटी को बाहर नहीं निकालते। नेक्स्ट है रिपीटेशन। इट मींस कहने का मतलब है कि जब अभी हमने लर्निंग प्रोसेस देखा था जिसमें अगर बच्चे को फीडबैक सही नहीं आता तो हम उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। इन द सेम वे अगर लर्निंग कर रहे हैं बच्चे तो उस कंडीशन में अगर उन्हें कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है तो वी मस्ट रिपीट द कंटेंट इन द सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस के साथ उस कंटेंट को हमें क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। रेलेवेंस, लर्न बेटर व्हेन मटेरियल इज मीनिंगफुल एंड रिलेटेड। ट्रांसपेरेंस, टू रीड वर्ड यूजिंग सिमुलेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि when you explain anything in the classroom you must take the examples from the real world। आप रियल वर्ल्ड से एग्जांपल जरूर लो। फीडबैक, ask for it and adjust training methods to audience। feedback is very necessary after completing your class। जब आपका क्लास खत्म हो जाता है, after that you must get the feedback from the students। that's why वो आपको आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं, वो आपको पता चलेगा। Learning style, there is different way of learning style: visual,
auditory and kinesthetic. If we are talking about visual, लगभग 30% स्टूडेंट्स लर्निंग जो करते हैं वो विजुअल मेथड से, उनको ज्यादातर विजुअल मेथड पसंद आता है। विजुअल मेथड के दौरान आप उनको ग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं, आप उनको किसी प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू समझा सकते हैं, आप उनको पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस, आर्टिकल्स इनके थ्रू समझा सकते हैं। As I told you, approximately 30% of students get the information, yani they become the good learner if they have visual learning. 30% of students visual learning को बेहतर तरीके से समझते हैं। Next होता है auditory. Auditory means जो सुनकर किया, यानी वैसी लर्निंग का मेथड जिसको हम सुनकर समझते हैं। जैसे टीचर ने अपना स्पीच दिया और बच्चे उसको समझ रहे हैं, तो ऑडिटरी के अंतर्गत आता है, जिनमें हम किसी भी प्रकार के कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडिटरी कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम एक स्पीच तरीके से अपना डिलीवरी वहां पे कर सकते हैं। वीडियोस का यूज को वहां पे कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस प्लेइंग मोड में होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। जस्ट लाइक हमारा जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करते हैं थ्रू द स्मार्ट क्लासेस, तो वो नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक। इट मींस इसमें वो लर्निंग मेथड आते हैं जिसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा दीजिए, आप वॉकिंग मीटिंग करवा दीजिए, रोल प्लेइंग है, नोट टेकिंग है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर करते हैं। लर्निंग स्टाइल्स आर बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेस और वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग पे काम करता है, जिसमें आपके विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक आ गए। नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग। हर एक स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति की लर्निंग का जो मेथड है वो अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है। इसी को हम लोगों ने 3 भागों में क्या कर दिया, देखा। कोई वीडियो देखकर समझता है, कोई ऑडियो सुनकर समझता है, और कोई एक्टिविटी के थ्रू समझता है। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन अ लर्नर नोज। लर्निंग तभी अगर करता है जब ये लर्नर जाने कि हमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है। When the learner knows what to learn and how to learn, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। Next, auditory, visual and kinesthetic. Auditory learners make up 30% of the population. लगभग 30% पॉपुलेशन का 30% जो है वो auditory learners। If you are an auditory learner, information comes in best through your ears. Whatever the information which you can get from the ears, this is called auditory. From speeches, presentation, audiobooks, you have a knack for foreign language and benefits from studying books also. Visual, लगभग 65% population visual को समझ पाते हैं। Like for example, छोटे बच्चे ज्यादातर विजुअल को समझ पाते हैं। They tend to neat and tidy, excellent spellers and quick to read charts. They are able to learn the content from the charts. They are able to learn the content from the presentation. They are able to learn the content by seeing the pictures. जब वो पिक्चर्स को देखते हैं तो ज्यादा समझते हैं, जब वो वीडियोस को देखते हैं तो ज्यादा समझते हैं, ये सारी चीज। और लास्ट है काइनेस्थेटिक। लगभग 5% पॉपुलेशन का 5% इसको यूज करते हैं। They are primarily made and love anything hands-on. These learners are often a skilled athlete or musician and are drawn to construction projects, science experiments and field trips. It means अगर यहाँ पे बात किया जाए तो काइनेस्थेटिक में ये आता है कि the learners get the knowledge by using the activities. तो वो लर्नर आपके क्या कहलाते हैं, काइनेस्थेटिक कहलाता है। अब वो लर्नर अगर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो मे बी दे बिकम वो प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, साइंस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
ये सारी चीज़। नेक्स्ट, relationship between teaching and learning. Both teaching and learning can be formal and informal. Teaching and learning formal भी होना चाहिए और informal भी होना चाहिए। Next one is both are goal oriented. Teaching and learning दोनों में goal oriented होना चाहिए, दोनों का कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। Like for example, टीचर का लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चे सही तरीके से समझ सकें, और बच्चों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें उन्हें सीखना है, हमें उन चीजों को सीखना ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। One can observe teaching but not learning. One can observe teaching but not learning. कोई टीचिंग को अगर ऑब्जर्व करता है तो वो लर्निंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एक्सपीरियंस पर्सन जब किसी भी लेस एक्सपीरियंस पर्सन को पढ़ाता है तो वो अपना टीचिंग परफॉर्मेंस देता है, बट वो वहाँ पे लर्निंग नहीं करता, वो टीचिंग परफॉर्मेंस। और वहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो चीजों को लिसन करते हैं और सीखते हैं। गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग। अगर इफ योर टीचिंग मेथड इज गुड तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और अगर आपका टीचिंग मेथड ठीक नहीं है, एट दैट कंडीशन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं है। आप उसका एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि टीचिंग अगर बेहतर नहीं है तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं है। तो ये चीज होगी। नेक्स्ट है बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर्स स्किल्स। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर्स स्किल्स एज आई डिस्कस्ड बिफोर। मैंने पहले ही इसको डिस्कस किया है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए स्किल्स जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस एंड ऑपरेट ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, ये सारी चीजें जरूरी है। यानी एक टीचर्स को सारे टीचिंग मेथड को यूज करना चाहिए और एक लर्नर्स को सारे लर्निंग मेथड का यूज करना चाहिए। अगर एक टीचर गुड टीचर बनना चाहते हैं तो दे मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस of the teaching. They must follow all the principles of the teaching method. और अगर स्टूडेंट्स को गुड लर्नर बनना है, उनको भविष्य में अच्छा बनना है, तो they must follow all the principles of the learn. That's why कि वो दोनों अच्छा कर सकते हैं। Next, good teaching requires good communication skills and good learning requires good listening skills. As I told you, एक अच्छी टीचिंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारे और आपके बीच में या हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू लिसन। वो हमें लिसन नहीं करते, वो हमें सुनते हैं, तो दैट्स व्हाई हम उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। दैट्स लाइक फॉर एग्जांपल्स वी कैन से दैट in our school most of the students are able to understand the English, but number of students are not able to understand the English. That's why we use English and Hindi both, ताकि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। Only good learners become good teachers. एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा टीचर होता है। Before starting the presentation, पहले ही मैंने कहा था कि फिल कॉलिंस ने ये कहा है, in learning you will teach and in teaching you will learn. यानी जब आप सीखते हैं तो आप खुद को टीच करते हैं, और जब आप दूसरों को टीच करते हैं तो आप खुद को सिखाते हैं। वही चीजें यहाँ पे हैं कि only good learners becomes good teachers. जो good learners होगा वही good teachers है। The next one is teaching is a social process, whereas learning is an individualized process. Teaching is social process, जबकि learning एक individual process है। It means कहने का मतलब अब टीचिंग के लिए हम एक सोशल प्रोसेस करते हैं, हम क्लासरूम में जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, वो इंडिविजुअल तरीके से समझते हैं, वो इंडिविजुअल तरीके से उसको लेते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका सेम है बट उनके समझने का तरीका अलग अलग है, इंडिविजुअल। सपोज 60 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास में, तो 60 माइंड्स वहां पे काम कर रहे हैं, 60 डिफरेंट क्वेश्चंस आर अराइजेस देयर, मे बी
कि 16 माइंड से वहां पे काम करेंगे तो वहां पे 16 डिफरेंट क्वेश्चन एनालाइज कर दिए जाएंगे, 60 डिफरेंट क्वेश्चन, उनके लिए हमें रेडी होना। तो हम तो एक ही हैं, सोशल काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल 60, इसीलिए वहां पे लर्निंग को क्या बताया गया है, इंडिविजुअल बताया गया है, जबकि टीचिंग को सोशल एक्टिविटी बताया गया है। द नेक्स्ट वन थिंग इज बिफोर टीचिंग एंड लर्निंग there is a moment of information, the information moves from teachers towards the students. Teaching and learning में there is a moment of information, वहाँ पे information का movement होता है from teachers to the students. टीचर से वो कहाँ तक जाता है, स्टूडेंट्स तक जाता है, और हम उसको सारी तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। So we can get this all the things teaching and learning process. Teaching and learning process में हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को देखा। Our next topic is, our next content is as I told you, the information moves from teaching towards the students. एक टीचर जब टीच करते हैं तो इंफॉर्मेशन टीचर से होते हुए स्टूडेंट्स तक जाता है, और अगर वो गुड लर्नर होंगे तो उसे क्या करेंगे, वो रिसीव करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन बाय quotation. Learning without reflection is a waste, and reflection without learning is a dangerous. That's all.